हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई थिंक आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे ड्यूरिंग द पेंडेमिक कोविड-19 और उससे अब धीरे धीरे उबर रहे होंगे. तो गाइज, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ऑफ थर्मोकेमिकल मेथड एंड सोलर मेथड और रिन्यूएबल एनर्जी मेथड टू जनरेट द हाइड्रोजन एनर्जी. इससे पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हाउ हाइड्रोजन विल जनरेटेड और प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस और फॉसिल फ्यूल मेथड्स के थ्रू हमने जनरेट किया था या प्रोड्यूस किया था. So guys, this is the continuation of lecture number 10 and this is the part of 2 of lecture. The topic is production of hydrogen energy. And guys, this is the topic in the subject of renewable energy sources according to the syllabus of electrical engineering 5th semester IKG PTU Kapurthala. So guys, before going to start the topic, I will request you, please watch my video till the end. Last तक आप वीडियो को जरूर देखें and subscribe the channel if you are the student of electrical engineering, a student in diploma as well as engineering branch, and also share with your friends. If you are the faculty member of any university across the country in the department of electrical engineering or electrical and electronics engineering, please subscribe my channel and share with your colleagues as well as your students to get the more benefit regarding the different topics in their curriculum. So guys, the before that I always request you, if you want to more knowledge and get better concepts regarding this particular topic, you can refer these books that already referred by me during my study. And I also so I suggest you, आप एक particular text book को जरूर refer करें to get the conceptual knowledge of particular topic. So guys, the topic is thermochemical method and this method is explained now. So guys, after the subscription of my channel, kindly press the bell button to get the notification immediately when I released or launch my video in different topics of electrical engineering. So guys, I am going to start my topic, and the topic is thermochemical method. The overall efficiency for the conversion of primary energy from fossil and nuclear fuels into hydrogen or electrolysis is dependent in the first place on the efficiency of generating electricity. एक्चुअली क्या है, मैंने पहले ही आपको बताया गया कि हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को छोड़ के कहीं पे भी सिंगल फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल नहीं है. तो हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू सेपरेट फ्रॉम द कंपाउंड टू जनरेट द हाइड्रोजन एनर्जी. उसके डिफरेंट मेथड्स है, तो इसलिए हम इसको कभी भी प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज में कंसीडर नहीं करते हैं. दिस एफिशिएंसी इज 30% फॉर मॉडर्न फॉसिल प्लांट्स and 32% for nuclear installation. ये इसकी efficiency है. The higher conversion efficiency might be possible if the heat produced by the primary fuel could be used directly to decompose water without the intermediary of electrical energy. Such direct decomposition into hydrogen and oxygen is possible, but it requires a temperature of at least 25 degrees Celsius. तो अगर हम डायरेक्ट कन्वर्जन करने लग जाए तो हमारा जो हायर एफिशिएंसी है वो हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप देख रहे हो कि हमें जो हायर टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट है दैट विल बी नियर बाय 25 डिग्री सेल्सियस. दैट इज नॉट पॉसिबल इजीली, बट ड्यू टू टेम्परेचर लिमिटेशंस एंड कन्वर्जन प्रोसेसेस इक्विपमेंट डायरेक्ट सिंगल स्टेप वाटर डिकम्पोजिशन इज नॉट पॉसिबल. तो ये पॉसिबल नहीं है. हाउएवर ए सीक्वेंशियल केमिकल रिएक्शन सीरीज कैन बी devised in which hydrogen and oxygen are produced, water is consumed and all other intermediates are recycled. The operation is called as thermochemical cycle. तो क्या होता है, एक डायरेक्ट हमारे पास कोई मेथड नहीं है कि हम वाटर के थ्रू डायरेक्टली हम हाइड्रोजन को सेपरेट कर सकें. सो वी हैव टू फॉलो द डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट केमिकल इक्वेशंस, जिसके थ्रू हम उसको पूरा का पूरा रिएक्शन करा के एक प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप करा के हम उसको कंप्लीट करते हैं. जो मैंने पहले भी बताया था आपको कि डिफरेंट जो हमारे जो उसमें
साइकिल है, उसी साइकिल के नाम पे उस पर्टिकुलर मेथड का नाम है इन द केस ऑफ थर्मोकेमिकल मेथड की जब हम लोग बात करते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट है वो देखिए क्या कह रहा है, इट इज सो कॉल्ड बिकॉज energy is supplied as heat at one or more of chemical stages and hydrogen and oxygen are produced separately in different stages। तो अलग अलग स्टेज हमें इसके लिए करने पड़ते हैं, जिसमें अलग अलग स्टेज में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो हमें अवेलेबल हो पाता है। नेक्स्ट है फॉर प्रैक्टिकल रीजंस primarily the ability structure and containment material the maximum temperature considered to be about 950 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग मैक्सिमम टेम्परेचर को कितना कंसीडर करते हैं, 950 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद क्या है, हीट एनर्जी then be converted into hydrogen energy with efficiency of 50%। This is a marked improvement over what is possible by electrolysis। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन एनर्जी विद एफिशिएंसी ऑफ 50% तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एंड दिस इज ए मार्क्ड इंप्रूवमेंट ओवर दैट इज पॉसिबल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है उसमें थोड़ा सा हम लोग इंप्रूवमेंट कर रहे हैं इन दी थर्मोकेमिकल मेथड टू जनरेट और प्रोड्यूस हाइड्रोजन एनर्जी। At present, no commercial process for the thermal splitting of water to hydrogen and oxygen is in operation। तो at present हमारे पास कोई भी ऐसा पॉसिबल जो मेथड है वो थर्मल स्प्लिटिंग मेथड नहीं है जिसमें हम लोग थर्मल स्प्लिटिंग कर सके वाटर का और हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। जैसे वाटर हमारे पास H2O है, हमारे पास आज के डेट में कोई ऐसा मेथड नहीं है, कमर्शियल प्रोसेस नहीं कर रहे हैं हम जिसमें हम डायरेक्टली H2O में से हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग कर सके। Several workers have proposed many multi-step reactions sequence that thermally decompose water at lower temperatures। तो अलग अलग जो हमारे रिसर्चर्स थे, राइटर्स थे जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्होंने अलग अलग इक्वेशंस हमें दिए जिसके थ्रू लोग अलग अलग इक्वेशंस बना के हम लोग हाइड्रोजन को अलग कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें दीज आर द इक्वेशंस, ये सारे इक्वेशंस हैं जिसमें हम अलग अलग ढंग से देख लो, यहाँ पे हाइड्रोजन अलग हो रहा है, यहाँ पे HCl है, तो आगे इक्वेशन ले जाके हम इसमें से हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं। तो आप जो चाहोगे कि सिंपली हम कर लें वो पॉसिबल नहीं है बाय थर्मोकेमिकल मेथड। थर्मोकेमिकल मेथड क्या है, थर्मोकेमिकल मेथड में सबसे मेन चीज ये होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे केमिकल रिएक्शंस की एक सीरीज कराई जाती है। एक ही रिएक्शन नहीं होता है, उसमें मल्टीपल रिएक्शंस होते हैं, आर इन सीक्वेंस फॉर्म, और अलग अलग टेम्परेचर पे कराया जाता है, अलग अलग स्टेज पे कराया जाता है, जिसके थ्रू हम लोग जो वाटर है उसमें से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को सेपरेट कर पाते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका सोलर एनर्जी मेथड। तो सोलर एनर्जी मेथड के थ्रू कैसे हम लोग इसको करते हैं वो आप देखिए। तो इसमें लिखा हुआ हाइड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम सोलर एनर्जी, देयर इज टू मेथड्स आर कंसीडर्स। जनरली यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दो मेथड को कंसीडर्ड किया गया है। First one is biophotolysis and second one is photoelectrolysis। So these are the two methods to generate the hydrogen energy by using solar energy method। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं that will be the biophotolysis। biophotolysis क्या होता है इसके बारे में अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। So इसमें क्या कहता है, this method utilizing living system or material derived from such system to split water into its constituents hydrogen and oxygen। तो इसमें लिविंग मेथड्स हम लोग यूज करते हैं, कुछ लोग मेथड्स यूटिलाइज लिविंग सिस्टम्स को हम लोग यूज करते हैं जिसके थ्रू हम लोग उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर पाते हैं। इन नॉर्मल फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स द ग्रीन पिगमेंट chlorophyll takes off the energy from sunlight and in a complex series of reactions break up water molecule into oxygen gas, hydrogen ions and electrons। तो ये सारा जो क्लोरोफिल टेक्स प्लेस होता है, ये जो पूरा ग्रीन प्लांट्स करता है, ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन लीव्स के थ्रू, ग्रीन पिगमेंट्स के थ्रू, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एक रिएक्शन होता है एंड दैट रिएक्शन अब टू जो है वो मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अलग अलग कर देता है। Then the oxygen is evolved from the green plants, but the hydrogen ions and electrons are removed by interaction with carbon dioxide from the air to produce simple sugar। तो उसके थ्रू हम लोग इसको कर लेते हैं सारा का सारा जो आप देख रहे हो लाइन में। Certain single cell green oblique blue algae are able to make enzyme
hydrogenase, they decompose water in sunlight to yield hydrogen and oxygen. तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस आप देख रहे हो दैट विल बी यूजिंग बाय द बायोफोटोलाइसिस। जो आपका कोई ट्री है उसके अंदर जो पूरा प्रकाश संश्लेषण जिसको हम लोग कहते हैं फोटोलाइसिस, उसके थ्रू हम सारा का सारा ये हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन एनर्जी को जनरेट हम लोग करते हैं। तो ये एक प्रोसेस था दैट विल बी द बायोफोटोलाइसिस। नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट विल बी द इलेक्ट्रोलाइसिस। से पहले 2 पॉइंट और हम लोग देख लेते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग लिविंग एल्गी टू ऑब्टेन हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, ए मोर कन्वीनियंट अप्रोच इज टू यूटिलाइज बायोलॉजिकल मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और बैक्टीरिया। वन एडवांटेज इज द एबिलिटी टू वेरी द कंडीशन टू ऑप्टिमाइज हाइड्रोजन प्रोडक्शन। इसका जो एडवांटेज है वो क्या है? एबिलिटी टू वेरी द कंडीशन टू ऑप्टिमाइज हाइड्रोजन प्रोडक्शन को हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं इसमें लास्ट लाइन क्या किया गया है? एन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च ऑन द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर बाय सनलाइट इज द एफिशिएंट सिमुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस विदाउट यूजिंग बायोलॉजिकल मटेरियल्स। तो जो पूरा का पूरा सन और जो ग्रीन ट्री के बीच में जो रिएक्शंस होता है उसके थ्रू हम लोग ये जो है वो हाइड्रोजन एनर्जी को जनरेट कर लेते हैं। सेकेंड जो आपका टॉपिक है इसमें सोलर एनर्जी मेथड में वो है आपका फोटो इलेक्ट्रोलाइसिस। इन फोटोसिंथेसिस जो होता है ग्रीन ट्री में, उस टाइम पे क्या होता है? करंट इज जनरेटेड बाय एक्सपोजिंग वन और बोथ इलेक्ट्रोड टू द सनलाइट। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस आर लिबरेटेड एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। उस दोनों इलेक्ट्रोड्स पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो लिबरेट हो जाते हैं बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर जस्ट एज एन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जो फोटो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ये जस्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जो हमने फर्स्ट में देखा था उसी तरह से होता है। और फोटोसिंथेसिस के कारण क्या होता है? जो इसके दो इलेक्ट्रोड्स है उस पे ये लोग जो है वो लिबरेटेड होने लगते हैं, ऑक्सीजन गैसेस और हाइड्रोजन गैसेस। एट लीस्ट वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इन द photosynthesis is usually a semiconductor. A catalyst may be included to facilitate the electrode processes. अब उसमें जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो इन द फोटोसिंथेसिस वी यूज ए सेमीकंडक्टर हम लोग यूज वहां पे करते हैं। रिसर्च इज बीइंग डायरेक्टेड एट इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी बाय सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल्स, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड कैटलिस्ट। तो ये सारी चीजें जो है इनमें रिसर्च का काम चल रहा है टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ओवरऑल जनरेटिंग सिस्टम ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन एनर्जी के जनरेटिंग सिस्टम के लिए जो जो चीज चाहिए हमें आगे वो सारी की सारी चीजें इसके थ्रू हो रही है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज ए मोर अट्रैक्टिव वे ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन एंड विद सोलर रेडिएशंस सिंस इट कैन बी ऑपरेटेड इंटरमिटेंटली एंड देयरफॉर नीड्स नो स्टोरेज। तो इसके जब हम लोग जनरेट करते हैं उसमें किसी भी तरह के स्टोरेज की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये इसका एक सबसे ग्रेट एडवांटेज है कि हमें स्टोरेज करने की जरूरत नहीं है। सो इलेक्ट्रोलाइसिस इज ए मोर अट्रैक्टिव वे ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन। तो जो सारा हमने पढ़ लिया उसके बाद हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो मोर अट्रैक्टिव वे ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैसेस है विद सोलर रेडिएशंस, है ना। तो ये सारी की सारी प्रोसेस जो है ये दो टाइप्स जो थे, सोलर एनर्जी मेथड एंड फोटो केमिकल मेथड, दीज आर दी टू मेथड्स टू जनरेट और प्रोड्यूस द हाइड्रोजन एनर्जी। तो ये जनरली जो चार मेथड थे हमने पूरे के पूरे कवर कर लिए दो लेक्चर में। लेक्चर 1 में मैंने दो डिस्कशन किया था, इलेक्ट्रोलाइसिस एज वेल एज फॉजिल फिल मेथड्स, और सेकंड में आपने देखा, आपको मैंने बताया कैसे इलेक्ट्रोथर्मल मेथड और जो आपका ये क्या कहते हैं इसको फोटो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है इसमें किस तरह से हाइड्रोजन एनर्जी जो है वो जनरेट होता है। तो गाइज जो भी आपको ये मटेरियल मेरे स्लाइड्स में मिल रहा है दीज आर दी फॉर्म्स ऑफ नोट्स, आप इसको लिख सकते हैं, ये आपका एक पर्टिकुलर नोट्स तैयार कर देगा। कभी भी आपको जैसे शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर राइट अप करना है तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। एंड माई लेक्चर इज टू बेनिफिशियल फॉर यू इफ यू लिसन ऑल द लेक्चर्स and collect the material given by me in the slides. You will prepare a self notes on this particular topic to get the clear conceptual knowledge in future also. तो अगर आपको फ्यूचर में कंसेप्चुअल नॉलेज की जरूरत है या आपको ये चीज चाहिए तो आप मेरे लेक्चर को जरूर पूरा देखें टिल द एंड तक, और उसके बाद आप जो मैंने मटेरियल स्लाइड्स में दिए हुए हैं उसको जरूर उसमें आप उसके थ्रू और जो मैं बोल रहा हूँ अपने लेक्चर में जो डिलीवर कर रहा हूँ उसके थ्रू और कुछ एक आध टेक्स्ट बुक लेके सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करिए गाइज।
और सेल्फ नोट्स आपको इतना फायदा करेगा कि आपको लाइफ में कभी भी कहीं पे भी कुछ भी ओपन करने की जरूरत नहीं है. You just open your notes and number of pages and deliver the lectures or do your work in the field of renewable energy sources. So guys, आगे मैंने आपको कहा हुआ है कि मैं बहुत सारे न्यू टेक्निक्स लेके आने वाला हूँ इन फ्यूचर, जो कि आपको बहुत ही हैंडी लगेगा. बहुत कम टाइम आप लोग देके बेस्ट से बेस्ट नॉलेज गेन कर सकते हो to clear your semester examination paper as well as clear your technical round interview during your placement activity also. So guys, कुछ दिन बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी सीरीज लेके आऊंगा, कुछ फॉर्मूलेज के भी सीरीज लेके आऊंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोगों को फॉर्मूलेज सारे याद नहीं रहते हैं. तो मैं एक पर्टिकुलर एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ जहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे फॉर्मूलेज अवेलेबल होंगे. और उस अवेलेबल में जैसे मैंने इक्वेशन लिखा तो उसमें कौन सी चीज क्या है, और उसके बेस्ड एक न्यूमेरिकल जो है जिसमें कोई उस न्यूमेरिकल में एक अननोन वेरिएबल होगा जिसको आपको फाइंड आउट करना होगा, वो आपको मिलेगा गाइज. तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और भी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ फ्रॉम नेक्स्ट वीक. लाइक सर्किट एनालिसिस डायरेक्ट आपको बोर्ड पे मैं लेक्चर कराऊंगा. टॉपिक वाइज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गोइंग टू बी स्टार्ट सून, circuit analysis going to be start soon, control system will going to start soon and electrical machine will going to start soon. तो ये सारे सब्जेक्ट्स फटाफट अब शुरू होंगे. and I will make you promise that before your examination you will get the entire syllabus lectures topic by topic in my channel in any university across the country. guys, I will make you sure. मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा एट एनी कॉस्ट. मुझे कुछ भी मेहनत करना पड़े, दिन रात एक करनी पड़े, बट मैं आपको ये फैसिलिटी जरूर प्रोवाइड कराऊंगा बिफोर योर एग्जामिनेशन गाइज. सो विश यू ऑल द बेस्ट. लेक्चर को देखें, लेक्चर को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, अपने जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप फैकल्टी है तो अपने स्टूडेंट्स और कॉलीग को शेयर करिए. और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए. और अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो या कंटेंट में कुछ भी, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट भी करिए, एज वेल एज आप वीडियो को लाइक जरूर करें. सो गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.